یہ مسلک اعلیٰ حضرت رافضیوں کا پلیٹ فارم ہے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ رافضیوں کا پلیٹ فارم ہے. یا علی علی کہہ کے ناچ لیا یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں علی علی کہا جائے گا وہی ابو بکر ہوگا, وہی عمر ہوگا, وہی عثمان ہوگا. میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور ہے اور نام ہے عبرت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مبارک حسین چترویدی. ہمارے ایک ہاتھ میں علی ہے, ہمارے دوسرے ہاتھ میں ابو بکر ہے, ہمارے دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر ہے, ہمارے دوسرے ہاتھ میں حضرت عثمان غنی ہے. کیوں؟ کیونکہ خالی علی کہنے سے بھی انسان کافر ہوتا ہے. سن تو بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں, خالی علی علی میں بھی انسان ہلاکت میں چلا جائے, اور خالی ابو بکر اور صحابہ کہنے میں بھی انسان ہلاکت میں چلا جائے. کیونکہ اہل بیت وہ ہیں جن کی محبت ایمان کا جز ہے. علی, فاطمہ, حسن, حسین, مصطفیٰ یہ پنجتن ہیں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو پنجتن کو پکڑے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے. بعض نام نہاد رافضیوں نے اس کو پکڑ لیا, علی علی کہو بیڑا پار. آگے کی بتاتے ہیں نبی نے فرمایا جو اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑے گا اس کا بیڑا, زور سے بولو, زور سے بولو, ارے زور سے بولو, شرما کیوں رہے ہو, زور سے بولو. اہل بیت کا, علی کا, حسن کا, حسین کا, سیدہ کا, طیبہ کا, طاہرہ کا, زاہدہ کا, عابدہ کا, تقیہ, زکیہ, شکیہ, جو سیدہ فاطمہ کا دامن پکڑ لے بیڑا پار ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں, سنو توجہ کے ساتھ بات کیا کری, بڑی پیاری بات. حضرت سیدنا صدیق پر بیٹھے تھے, حضرت علی گزرے, صدیق پر مسکرانے لگے. مولا علی نے کہا مسکراتے کیوں ہیں؟ کہا مسکراتا علی اس لیے ہوں کہ میرے نبی نے رات میں کہا تھا ابو بکر میرا علی وہ ہے جو جنتیوں کو ٹکٹ بانٹے گا. جھوم کے حضرت ابو بکر کیا کہتے, علی میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ نبی نے کہا تھا کہ میرا علی جنتیوں کو ٹکٹ بانٹے گا. میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت, میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت, علی سے محبت کرنا عبادت. بات ختم. اب آگے کی حدیث رافضی نہیں بتائے گا, بریلی کی غلام بتائیں گے. وہ تو وہیں تک لے گا نا جہاں تک اس کو فائدہ ہو. علی 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 کہوا دیا, کیا بات ہو گیا. آگے سنو, آگے آگے آگے. ابو بکر کہتے ہیں, حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ علی جنتیوں کو ٹکٹ بانٹے گا, اس لیے مسکرا رہا ہوں. اب یہ سن کے علی مسکرانے لگے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ علی آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ تو مولا کائنات کا جملہ سنے, ہمارے علماء سنے. حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ اے صدیق آپ سے نبی نے کہا کہ جو علی کو دیکھے, علی سے پیار کرے, علی جنتیوں کو ٹکٹ بانٹے. نبی نے مجھے بلا کے کہا اے علی جنت کا ٹکٹ اسی کو بانٹنا جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہوگی. یہ ہے سنت, یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اور اللہ کے عزت کی قسم اگر علی سے, فاطمہ سے سب سے زیادہ کوئی روئے زمین پہ پیار کرتا ہے تو وہ عشق اعلیٰ حضرت کی ہے. مجھے بتاؤ کون ہے جس نے اہل بیت کے لیے یہ شعر لکھا ہو. ارے کوئی شفاعت کے لیے کہتا ہے یا رسول اللہ میں شفاعت کے لیے نماز لے کے آؤں گا, میں روزہ لے کے آؤں گا, میں حج لے کے آؤں گا, میں زکات لے کے آؤں گا, میں ماں کی خدمت لے کے آؤں گا, میں باپ کی خدمت لے کے آؤں گا, میں تقویٰ لے کے آؤں گا. سب یہی کہتے ہیں نا. اور یہ جو 40 دن ہڑیا, ستو, پتیلا, پتیلی لے کے جو مولوی گلی گلی گھومتا ہے, یہ تو لے نماز لے نماز, ہم تو نماز لے کے جائیں گے, ہم تو روزہ لے کے جائیں گے. اب بریلی کے امام سے پوچھا گیا کہ اپنی شفاعت کے لیے آپ کیا لے کر جائیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا نماز میرے پاس نہیں, روزہ میرے پاس نہیں, حج میرے پاس نہیں, زکات میرے پاس نہیں. کہا احمد رضا کیا لے کے جاؤ گے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں اس کو
बात करेगा, हसन की बात करेगा, इमाम हुसैन की बात करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात करेगा, उससे आगे बढ़ेगा तो कहेगा मैं मूसा कासिम से प्यार करता हूँ, मैं रज़ा अली से प्यार करता हूँ, तकी अली से प्यार करता हूँ, नकी अली से प्यार करता हूँ, इमाम जाफर as-सादिक से प्यार करता हूँ, हजरत इमाम मेहदी से प्यार करता हूँ। राफ़िज़ी कहते भी यही है, हमारे 12 इमाम, हम इमाम हसन तक प्यार करते हैं। ओ राफ़िज़ियो, ओ खारिजियो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं अहले बैत से प्यार करना, ये आला हजरत का जिगर है जिन्होंने अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ इमाम जाफर तक नहीं रखा, मूसा कासिम तक नहीं रखा, इमाम तकी तक नहीं रखा, इमाम नबी तक नहीं रखा, इमाम कल्बे जुफ़ात तक नहीं रखा, इमाम जाफर तक नहीं रखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक नहीं रखा, इमाम मेहदी तक नहीं रखा, गौसे आज़म तक नहीं रखा, गरीब नवाज तक नहीं रखा, बल्कि सैयदों की नस्ल में, अली की औलादों में क़यामत तक जितने भी सैयद पैदा होंगे, ये बरेली के पठान ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नहीं है, तू है मैं नहीं हूँ तेरा। को उठा के लाते हो और लास्ट इमाम मेहदी तक खत्म करते हो, ये हमारा अहमद रजा है जो अली से उठाता है और सुबह क़यामत तक जितने भी अली के बेटे पैदा होंगे उनसे मोहब्बत करने की तालीम देता है। आपने कहा अली को मानते, अली की मानते, दलील क्या दिया मैंने? एक भी शख्स मुझे दिखाए जरूर, वरना मैं क़यामत में आप सबका गरीबान पकड़ूंगा। कव्वाली की दलील यही है ना कि साबरी सिलसिले में होता है, चिश्ती सिलसिले में होता है, कुछ आवारा और मनचले किस्म के लोग कहते हैं अरे तो गरीब नवाज के मज़ार पर कव्वाली होता है तो हम क्यों ना करें, शाबिर पाक के मज़ार पर होता है तो हम क्यों ना करें। मेरा सवाल ये नहीं है कि कव्वाली करते हैं, पहले बात सुन लो कान खोल कर, मेरा ये भी सवाल नहीं कि कव्वाली सुनते हो, मेरा सवाल ये है मर्दों के दरमियान जवान औरतों को बुलाकर नचाकर कव्वाली सुनना ये कहाँ जायज है? सूफिया की किताबों में यह रिवायत है कि सूफिया कव्वाली सुनते थे, तो सूफिया जिस तरीके से सुनते थे वैसे ना सुनोगे। तुम्हें कोई गाड़ी देगा 5 किलोमीटर लेकर जाओ और तुम पूरा लखनऊ का भूल भुलैया घूम कर आओगे तो ये तुम गाड़ी मालिक के साथ वफादारी कर रहे हो कि गद्दारी? सूफिया ने कहा कि अदब से कव्वाली सुनो तो उसकी आड़ में तुम कव्वाली नहीं कव्वाला बुला रहे हो। कव्वाला गाती क्या है? कव्वाला गाती क्या है? पहले 20 किलो मेकअप पोतेगी, अब पोतने के बाद एक लौंडे लफाड़े बेशरम कव्वाल के सामने आएगी। पहले तो हसन भाई इतना लंबा घूंघट करेगी, यूं घूंघट करके और उसके बाद कव्वाली गाएगी मौला या सल्ली व सल्लिम, ऐसा लगेगा जन्नत से हूर आई है। फिर उसके बाद दुपट्टा यहाँ आएगा और उसके बाद गाएगी भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, और उसके बाद जब तीसरे में असल अपना चंडाली चुड़ैल डाइन डकैत नागिन वाला रूप दिखाएगी, अब दुपट्टा को यूं करेगी और उसके बाद करेगी यूं, और फिर मर्द कव्वाल को इशारा, क्यों जी अपने कांधे से दुपट्टा न सरकने देना वरना बुढ़वा की जवानी की दुआ मांगेगी। यही होगा। शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही? 4000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां तुम्हारे उत्तर प्रदेश के अंदर धर्म परिवर्तन के नाम पे तेरे इस्लाम को छोड़कर काफिरों के दामन में जाकर बैठी है। अगर किसी मुस्लिम बेटी का कोई काफिर नकाब खींचता है तो तू कहता है बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। मुस्लिम औरतों का ये जुल्म नहीं होना चाहिए। अब तू खुद एक मुस्लिम बच्ची को लौंडियों की तरह स्टेज पे सजा के नचा रहा है, उस पे यूं पैसा फेंक रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? तुम्हारे जलसे के इश्तिहार में जानते हो क्या लिखा था? औरतों के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम है। खबरदार ये झूठी बात मत लिखना, अब से इश्तिहार में लिखना औरतों के लिए नाचने का माकूल इंतजाम है। सही बिल्कुल हक है। तुम्हें मालूम नहीं है
तमाशे तुम करते हो, जवाब हम उलमाए अहले सुन्नत को देना होता है। ओ पैसे के घमंड पे अपनी दौलत लुटाने वालों, तुम्हें किस बात का गुरूर है? तुम सेठ साहब हो, तुम लाट साहब हो, जवान हो जवान, लड़ोगे कमेटी वालों से जो कहते कव्वाली न करो। याद रखो तुमसे बड़ा पहलवान था दारा शिको जो इस जमीन के अंदर फंस गया। तुमसे बड़ा पैसे वाला था सिकंदर जिसके खजाने की चाबियां 70 ऊंटों पे लादी जाती थी। मर गया, जो मरने लगा तो अपनी माँ से कहा कफन से मेरा हाथ बाहर निकाल देना। कहा क्यों? कहा दुनिया को बता दे जिसके खजाने की चाबियां 70 ऊंटों पे लादी जा रही थी, आज वो दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। या तो कब्र में हमारा आमाल होगा या तो कब्र में मुस्तफा के साथ रोना इसलिए आता है कि तुम तो तमाशे करके चले जाओ। ये बदअकीदे वहाबी देवबंदी हमसे कह रही है देखो तुम्हारा आला हज़रत का दीवाना है जो लौंडियों पर जा रहा है। एक बात मुझे ईमानदारी के साथ अपने दिल में हाथ रख करके बताइएगा, आपके घर की 18, 20 साल 22 साल की जवान बेटी हो, हम उसकी तारीख ले, तुम्हें 50,000 देंगे, तुम्हें धमौली के स्टेज पे नाचना है, तमाशा करना है, कव्वाली गाना, दिल पे हाथ रख के बताना तुम इजाजत दोगे? वो भी तो किसी की बेटी है ना। और कितना बेहया कितना बेशरम है वो बाप, अगर कैमरे के जरिए से उन खवातीन के माँ बाप सुन रहे हैं जो कव्वाली के नाम पे स्टेजों से फहाशी और अय्याशी के बाजार को गर्म कर रहे हैं और तुम्हें कमाने का कोई और जरिया नहीं मिलता है तो तुम भीख मांग लो रेलवे स्टेशन पे, लेकिन कम से कम मजहब इस्लाम के नाम पे अपनी बेटियों को ला करके कव्वाल, ये कहने की चीज है। आप अभी YouTube पर जाओ और जाकर के देखो कि ये जवान कव्वाल और कव्वाला जब स्टेज पे आते हैं तो कितने बेहुदा इशारात होते हैं। किसी से छुपा है? क्यों? तुम्हारे यहाँ जो कव्वाला आएगा वो सियासत से आएगा क्या? वो बगदाद से आएगा क्या? मैं साकिब वारसी से कहता हूं और मैं लिमरा एजेंसी से कहता हूं कि मेरे भाई पहुंचाओ इसको सोशल मीडिया के जरिए से। ये जितने भी नौजवान कव्वाल हैं मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, खुदा की कसम तुम भूखे मर जाओ लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत की किसी बेटी के साथ स्टेज पे इस कदरी के साथ तमाशा न करो। मसला कव्वाली का नहीं हो मेरे भाई, कुफ्फार और मुशरिकीन तुम्हें पता नहीं, दिन रात आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, जितनी भी बड़ी बड़ी तंजीमें, ये दिन रात इनकी प्लानिंग है तुम्हारी इज्जतों को कैसे लूटा जाए, तुम्हारी बेटियों को कैसे बर्बाद किया जाए। तुम किस गफलत में सोए हो यार, किस दौलत के नशे में तुम्हें क्या हो गया है? अरे यार लाल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से तुम्हें प्यार है तो खुदा की कसम इनकी बारगाह में ऐसी महफिल करो कि तुम्हारी महफिल में सिर्फ हम नहीं आए, आप नहीं आए, बल्कि लाल शहीद कह दे अब्दुल कादिर जिलानी आओ देखो मेरे दरबार में दीवाने आए हैं, बगदाद से तुम्हें भी आना पड़ेगा। दरबार में दीवाने आए हैं, अजमेर से तुम्हें भी आना पड़ेगा। वारिस पाक मेरे दरबार में दीवाने आए हैं, तुम्हें भी देवा से आना पड़ेगा। क्यों नहीं ऐसा प्रोग्राम करते यार? एक जुमला और सुनो, अगर कोई शख्स कहता है कि कव्वाली कराने से लाल शहीद बाबा को खुशी होती है तो मैं अपना ताल्लुक छोटा सा बता दूं। मैं मुबारक हुसैन कादरी चतुर्वेदी हूँ, मेरा मादरे इल्मी बरेली शरीफ है, मेरी फरागत मंजरे इस्लाम से है, मैं मुरीद हूँ चिश्तिया सिलसिले के इतने बड़े बुजुर्ग जो सरकार गरीब नवाज के 90 मुरीदों खलीफा हैं। मैं बार बार चिश्ती साबरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कव्वाली में दलील इन्हीं सिलसिलों की ज्यादा दी जाती है। मेरे मुर्शिद गरीब नवाज के मुरीदो खलीफा है, 90 मुरीदो खलीफा। मैं शजरा भी बता देता हूँ, 5 मिनट सुन सकते हो ना? नहीं मुझे खुश करने के लिए ईमानदारी से बताओ, सुन सकते हो 5 मिनट? दिल का दर्द है तुमसे बयान और इसको बयान करने के लिए कलेजी नहीं कलेजा चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बयान के बाद कोई कव्वाल का आशिक हो और मुखालिफत की तकरीर में सुनता हो सकता है रास्ते में कोई हादसा कर दे। हालांकि ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, लेकिन दुनिया में लोग इसलिए तो नहीं बोल रहे ना कि हक बोलेंगे तो रोजी रोटी चली जाएगी, सच बोलेंगे तो इमामत चली जाएगी, हक बोलेंगे तो मदरसे की निजामत चली जाएगी, सच बोलेंगे तो सेठ साहब नाराज हो जाएंगे। अल्लाह नाराज हो चलेगा, मुस्तफा नाराज हो चलेगा, आला हजरत नाराज हो चलेगा, सेठ साहब नहीं नाराज होना चाहिए, 500 देगा कौन? सदर साहब नाराज नहीं होना चाहिए, तनख्वाह बढ़ाएगा कौन? मैं कहता हूँ सिर्फ आवाम को दोषी मत दे, उलमा भी बराबर के जिम्मेदार है, उलमा भी। तुम कहते हो कौम हमारी नहीं सुनती, अरे कौम तो तुम्हारी इतनी सुनेगी तुम्हारे जूते पे गिर जाएगी, मर जाएगा कोई इस तरह का बेहुदा इंसान। अपने अंदर ऐलान कर दो, हम उस वक्त तक उसका नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाएंगे जब तक वो तौबा नहीं कर लेता। देखता हूँ
दूसरे घर के चक्कर में कहेगा अरे तुम कराओ ना, हम आके फातिहा कर देंगे। गलत है। एक मौलवी अगर सच्चाई की आवाज उठाएगा तो दूसरा कहेगा छोड़ो तो कितना बाहर जाओ, 500 हमें दो, हम तो कर देंगे। क्या मौलवियों सुधरो, आवाज उठाओ जो गलत है। कैसे हो सकता है यार, नाम आला हजरत का लोगे और जनाजा मसलकी आला हजरत का निकालोगे। ये अली अली पढ़ रहे थे, हजरत मुमताज नादवी कैसे कूद रहे थे। मैं बैठ के यही सोच रहा था कहां गए वो अली वाले जो कल लौंडियों को नचाएंगे स्टेज पे। पता है अली ने क्या कहा? अरे अली ने क्या कहा मालूम? सरकार मौला कायनात सैयद हजरत सरकार मौला अली इरशाद फरमाते हैं, ए मुस्तफा के उम्मतियों सुनो, इस्लाम के अंदर एक औरत को पर्दे का इतना हुक्म है कि मेरी बीवी जो मुझे जान से ज्यादा अजीज है, जो हसन की अम्मी है, हुसैन की अम्मी है, जाने कायनात मोहम्मद मुस्तफा की बेटी है। अली कहते हैं फातिमा का जब आखिरी वक्त आया, रूह जिस्म से निकलने वाली थी, अली कहते मैंने फातिमा से कहा था फातिमा तू अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, नबी की बेटी है। ए फातिमा तू तो वो है कि तुझे नबी देख के कहते थे फातिमा को मैं देखता हूँ तो मेरे दिल को ठंडक पहुंच जाती है। ए फातिमा तू तो वो है कि तुझे देखने के बाद मुस्तफा का चेहरा याद आ जाता है। ए फातिमा जब तू इंतकाल करेगी, जब तू दुनिया से जाएगी तो तेरे जनाजे के अंदर हम पूरे मक्का को इकट्ठा करेंगे, पूरे मदीना को इकट्ठा करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि अली की बीवी फातिमा, अली की बीवी हसन हुसैन की अम्मी मुस्तफा की बेटी का जनाजा बहुत धूम से निकला है। ए मुस्तफा की बेटियों को कव्वाली के नाम पे नचाने वालों, फातिमा ने रो के कहा था अली जब मैं मर जाऊं तो मेरी वसीयत ये है मेरे जनाजे में सिर्फ 4 लोगों को रखना, और वो भी उन 4 लोगों को रखना जो हमारे घर के लोग होंगे, जो फातिमा के जनाजे को कांधा दे दे, और रात के पिछले पहर में चुपके से जनाजा निकालना, खामोशी से दफन कर देना। अली ने कहा फातिमा ऐसा क्यों? तो फातिमा ने रो के कहा था मैं नबी की बेटी हूँ, इस्लाम ने औरतों को पर्दे की तालीम दी है, मैंने जिंदगी में इतना पर्दा किया कि अली या तो मेरे चेहरे को मेरे बाबा मोहम्मद ने देखा है, या तो मेरे शौहर अली ने देखा है, या तो मेरे बेटे हसन हुसैन ने देखा है, उसके अलावा किसी मर्द ने नहीं देखा। अली मैं चाहती हूँ जिस फातिमा को जीते जी किसी मर्द ने नहीं देखा, मरने के बाद फातिमा के जनाजे को भी कोई मर्द देखने ना पाए। अली का नाम बदनाम करने वालों, अली का नाम लेकर कव्वाली करने वालों, अली की बीवी है फातिमा कहती मरने के बाद फातिमा का जनाजा भी कोई मर्द न देखे। जरा सोचो तो सही, जिस फातिमा के जनाजे को कोई दूसरा मर्द न देखे, फातिमा को उससे भी तकलीफ है, उसी फातिमा के बाबा मोहम्मद के उम्मत की बेटियों को तुम बेपर्दा करके नचाते हो। बताओ कब्र में अगर फातिमा ने पूछ दिया कि मैंने तो अपनी मैयत की गैर महरम को न देखने दी और तुम मेरे बाबा की उम्मत की जवान बेटियों को मर्दों के सामने नचा रहे हो, बताओ क्या तुम्हें मेरे बाबा का चेहरा याद नहीं आया था? क्या फातिमा का पर्दा याद नहीं आया था? क्या हुसैन की शहादत याद नहीं आई थी? तो बताओ तुम फिर फातिमा को और नबी को तुम कौन सा जवाब दोगे? इमाम हुसैन करबला के मैदान में जब 10वीं मुहर्रम शरीफ को शहीद होने जा रहे थे, आपकी बहन सैयदा ज़ैनब ने कहा था भाई जब आप इंतकाल कर जाएंगे, आप शहीद हो जाएंगे करबला के मैदान में, हमारा क्या होगा? जानते हो हुसैन ने क्या कहा था? ज़ैनब मैं जानता हूं कि मेरी शहादत के बाद खेमों को आग लगाया जाएगा। कहते मैं जानता हूं कि मेरी शहादत के बाद खेमों को आग लगाया जाएगा। ज़ैनब मैं जानता हूं मेरी शहादत के बाद इसके अंदर मेरी बहन ज़ैनब है, मेरी बीवी शहरबानो है,
میری بیمار بیٹی سکینہ ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم، یہ کتے، یہ بھیڑیا ہے، میرے شہادت کے بعد تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دیں گے، لیکن زینب مجھ سے وعدہ کرو مر جانا لیکن کبھی بے پردہ نہ ہونا۔ زینب وعدہ کرو کہ مر جانا لیکن کبھی بھی غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ جو بھائی اپنی بہن کو موت کے وقت اتنی بڑی نصیحت کر رہا ہو کہ زینب مر جانا، سکینہ مر جانا، شہربانو مر جانا لیکن بے پردہ نہ ہونا۔ بھائی مر جائے تو اس کی میت پہ دہاڑے مار کے نہ رونا، کیونکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہوتی ہے۔ جس حسین نے اپنی بہن کو زور سے رونے سے منع کیا کیونکہ عورت کی آواز پردہ ہوتی ہے، اسی حسین کے نانا کی بیٹی کی امت کو تم زور سے نہیں مائک میں لگا کر کے چلواتے ہو قوالی کے نام پہ، مرو تو کیا جواب دوں گی؟ میں میزان بھائی سے اور ان کی کمیٹی سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میں کسی مسلمان سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ مسلمان بہرحال مسلمان ہے، وہ حضور کا امتی ہے، اور حضور کے امتی سے پیار کرنا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن مجھے میزان بھائی سے بہت شکایت ہے، میں ان کو اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں، اس کمیٹی کو اپنی کمیٹی مانتا ہوں، زبانی نہیں مانتا ہوں، عملی طور پہ مانتا ہوں۔ انہوں نے ہماری تاریخ 24 تاریخ میں لی تھی اپنے پروگرام کے لیے، انہوں نے پھر کہا حضرت نہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ تیسری مرتبہ بھی آئے۔ میں مصروف تھا، میرے پاس تاریخ خالی نہیں تھی، میں نے کہا اگر آپ کی کمیٹی چاہتی ہے، وہ کمیٹی آپ کی نہیں، ہماری دھمولی ہمارا ہے، ہم دھمولی میں آئیں گے، ہم آئے۔ میں ان کو اپنا بھائی جانتا ہوں، لیکن میری شکایت ان سے یہ ہے کہ جب یہاں ایک لڑکی کو نچانے کا نام ہو، میں بار بار ناچنے کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اس میں قوالی نہیں ہے۔ جتنے علماء بیٹھے ہیں یا کوئی بھی مولوی، کوئی بھی پیر کسی بھی خانقاہ کا ہو، اگر ثابت کر دے وہ قوالی ہے، میں 5 لاکھ روپیہ اس کو انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ریکارڈ کیجیے اس کو، کھروائی ڈالیے سوشل میڈیا پہ۔ اگر کوئی ثابت کر دے کہ کوئی عورت بے پردہ ہو کر مردوں کے درمیان گائے وہ قوالی ہے، میں 5 لاکھ روپیہ دینے کو اس کو تیار ہوں۔ یہ قوالی نہیں ہے، یہ طوائفی ہے، طوائفی، یہ محض نفس کی غلامی ہے، لذت ہے، مزہ ہے۔ ہمیں قوالی وہ نہیں ہے، قوالی تو وہ ہوتی ہے کہ محفل بابا نظام الدین کی ہے اور قوال امیر خسرو ہے، اور امیر خسرو نے کہا خدا خود میر مجلس بود اندر لام کا خسرو، محمد شم میں محفل بود شب جائے کہ قوالی تو وہ ہے کہ جب امیر خسرو کی محفل، جب نظام الدین کی محفل میں امیر خسرو نے قوالی پڑھی نا، تو نظام کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر جھومنے لگے، رشک کرنے لگے۔ آج بھی کچھ لوگ قوالی پہ رشک کرتا ہے، رشک نہیں کرتا ہے، ناچتا ہے، ناچتا ڈانس کرتا، کہتا ہم تو حال کر رہے ہیں۔ ابھی حال کر رہا ہے کہ بے حال کر رہا ہے؟ حال کسے کہتے پتہ ہے؟ بابا نظام کھڑے ہو کر رشک کرنے لگے۔ امیر خسرو کہتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے پیر جیسے جیسے گھوم رہے تھے ویسے ویسے زمین گھوم رہی تھی، ویسے ویسے آسمان گھوم رہا۔ مذاق بات ہے، مذاق بات ہے۔ شکایت ہے اپنے بھائی سے، اور شکایت اس لیے ہے کہ میں ان سب سے پیار کرتا ہوں، اور جو جس سے پیار کرتا ہوں اسی سے شکایت کرتا ہے۔ دھمولی والوں، دھمیلی کی کمیٹی والوں، تم اپنے کو بے بس کمزور کیوں سمجھ رہے ہو؟ اللہ کی قسم تم اتنے مضبوط اور اتنے شاندار اور اتنے اچھے ہو، اور تم اتنے مسائل کو سمجھتے ہو کہ تم نے ایک مرتبہ شکیل عارفی کے مسئلے پہ ہم سے مشورہ لیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ میری کسی بھی شاعر، خطیب، مقرر سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، اللہ کی قسم سب میرے لیے عزیز ہیں، لیکن بات جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کی آئے گی اور بات جہاں حضرت ابو بکر کی عظمت کی آئے گی، ارے ایک شاعر کیا، میرا باپ بھی اگر ابو بکر کا گستاخ ہوگا ہم اسے جوتیوں سے مار کے کہیں گے، ہم مریں گے تو صحابہ و علی کے ساتھ، جئیں گے تو صحابہ و اہل بیت۔ مجھ سے سیب بھائی نے کہا بمبئی سے کہ حضرت ایک آڈیو آپ 2 منٹ کی ڈال دیجئے، میں نے فوراً کمیٹی میں ایک آڈیو ڈالا، اور میں اس بات کی، اس کمیٹی کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری آڈیو کا جانا تھا کہ پوری کمیٹی نے ایک آواز کہا تھا جو اعلیٰ حضرت کو پسند
वो धमौली की कमेटी को पसंद और जो आला हजरत को ना पसंद वो पूरी सुन्नियों को ना पसंद। वाह, मैं इसलिए इस कमेटी से प्यार करता हूँ, इसलिए नहीं कि ये बुला के मुझे नजराने देते हैं, मेरे रब का करम है कि मुबारक कादरी को नजराने देने वाले बहुत लोग हैं। बात नजराने की नहीं है, बात हुजूर की इश्क की। प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, लड़कियों को नचाना हो किसी दूसरे मौलवी को बुला लेना, हमको न बुलाना। दूसरा मौलवी आए, उसको लिफाफा दो, मुर्गा खिलाओ, मलीदा खिलाओ, पुलाव खिलाओ, वो तुमको खुश करके जाएगा, बैठे बैठे जन्नत में तुमको पहुंचा के जाएगा, नचाओ, हमें न बुलाना। हम एक ने ऐसे 10 जलसे कुर्बान करते हैं जहां मसलक का जनाजा निकाला जाता हो। हम खाली नाम का मसलक है आला हजरत नहीं लगाते, हम जान दे देंगे आला हजरत के लिए। अबे जान बाद में दियो, पहले आला हजरत के मिशन को फैलाने के लिए 10 जलसा छोड़ के दिखाओ। 10 जलसा छोड़ोगे तो मुझे आपका घाटा होगा। यहाँ तो हजरत गांधी नजर आ रहे हैं, यहाँ तो गांधी जी नजर आ रहे हैं। 10 जलसा छोड़ा तो दूल्हा गया। कलेजा चाहिए, कलेजा। आला हजरत ने घर बार छोड़ा, मुफ्ती आजम हिंद ने जिंदगी छोड़ी। आला हजरत का डंका ऐसे ही नहीं बज रहा है। इसी नानपाड़े का बादशाह था जिसने कहा था, अहमद रजा एक शेर लिखो, एक शेर, नानपाड़ा की पूरी जमींदारी दे दूंगा। आला हजरत ने कहा था, करूमत राहले दो वल रजा, बड़े इस बना में मेरी बना, मैं खुदा हूं अपने कहीं के मारे ना। मैं इसलिए भी मिजान भाई से बेपनाह मोहब्बत करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 आलिमा बच्चियों का बाप। क्या बात है, पढ़ाओ अपनी बेटियों को, पढ़ाओ, ओ पढ़ाओ अपनी बेटियों को, पढ़ाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, लड़का पढ़ता है तो एक कुंबा सुधरता है, लड़की पढ़ती है तो कई नस्लें, कई खानदान सुधरते हैं। पढ़ाओ अपनी बेटियों को, पढ़ाओ। मैं उस बाप का कदम चूमने को तैयार हूं जिनके बाप ने अपनी बेटियों को काला काला रसूलुल्लाह का दर्स दिया है। वरना मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे क्या हो रहा है आपको पता नहीं है? पता नहीं है? 4-4 बजे भोज में कोचिंग हो रही है। जरा सोचो कि एक जवान टीचर है, 2-4 जवान बच्चियां हैं, 4 बजे भोज में कौन सा कोचिंग पढ़ेंगी? बात तल्ख है थोड़ा, लेकिन दिल पे हाथ रख के सोचो तो पता चलेगा मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। कॉलेज और हायर एजुकेशन के नाम पे तुमने 5-5 साल तक यूनिवर्सिटीज में रखा है, बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर रखा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पढ़ाया तुमने, दौलत तुमने खर्च किया। अब बेटी जब कामयाब होकर डॉक्टर इंजीनियर बन रही तो फोन कर दिया, हेलो मम्मी, हेलो डैडी, क्या हुआ जी? हमने पसंद कर लिया अपना जीवन साथी, टाटा बाय बाय। अब लो बाबा घंटा हिलाए। नहीं गलत, अरे गलत। तुम कहते हो पढ़ाने से क्या होगा? मैं कहता हूं माँ बाप अगर नेक हो तो बेटा गुंडा पैदा नहीं होता है, वक्त का अब्दुल कादिर पैदा होता है। बल्कि मेरी खिताबत का एक जुमला बहुत मशहूर है, अबे बाप अब्दुल्ला जैसा हो और माँ आमिना जैसी हो तो बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा होता है। बाप अली जैसा हो, माँ फातिमा जैसी हो तो बेटा हसन हुसैन पैदा होता है। बाप गयासुद्दीन होता है, माँ नेक होती है तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है। बाप नेक होता है, माँ नेक होती है तो बेटा मुईनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। बाप नकी अली हो, माँ पारसा हो तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। बाप मुफस्सिर आज़म हो, माँ ताहिरा पाकीज़ा हो तो बेटा ताजुश शरिया पैदा होता है। और आओ, माँ बाप जब नेक होंगे तभी प्रोडक्ट अच्छा होगा। जब फैक्ट्री गड़बड़ होगी तो प्रोडक्ट खराब होगा। सही है? माँ देख रही है घर के अंदर सीरियल, सास और बहू, डंडा से सास को बाहर नहीं निकालेगी। तुम कहते हो लड़का बिगड़ा, नहीं 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 नहीं, पहले लड़का नहीं बिगड़ा, पहले बड़का बिगड़ा, तब लड़का बिगड़ा। हजरत तावीज़ दे दीजिए किसको? हमारा लड़का बिगड़ा। अच्छा तुम सुधरे हो, सलाम
नहीं करता। तुमने पूरी जिंदगी अपने अब्बा को सलाम की, तुमने पूरी जिंदगी अपनी बीवी को सलाम किया। हजरत हम बीवी को कैसे सलाम करेंगे, हम मर्द आदमी हैं, बीवी को सलाम करेंगे, हमारा वैल्यूएशन नहीं घट जाएगा, वैल्यूएशन घट जाएगा। ये बताओ कि बीवी को सलाम करने से अगर इज्जत घटती तो इस दुनिया में अली से बड़ा कोई मर्द है? क्या बात, फातिमा से बड़ी कोई बीवी है? हजरत सैयदना सरकार मौला अली इरशाद फरमाते हैं, मैं घर के अंदर दाखिल होता, सोचता कि मैं फातिमा को पहले सलाम करती कि उससे पहले फातिमा मुझे सलाम कर देती थी। सैयदा फातिमा कहती हैं कि मैं सोचती कि मैं पहले अली को सलाम करूं कि उससे पहले मेरा अली मुझे सलाम कर देता था। जिंदगी भर तुम करोगे नहीं बीवी को सलाम और उम्मीद रखोगे कि उसका बेटा करे हमको सलाम, कैसे होगा? जो काटोगे वही, जो बोओगे वही ना काटोगे। बोओगे धान, गेहूं, काटोगे गेहूं, लगाओगे अमरूद, तोड़ोगे आम। अल्लाह की इज्जत की कसम, बच्चों की अच्छी तालीम दो। उसको शुरुआती दौर से जब घर में खाना खाने बैठो ना, सुनो 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 मसला सुनो, जब घर के अंदर खाना खाने के लिए बैठिए, तरीका बताओ। जब घर में खाना खाने बैठिए, अकेले खाना मत खाइए। जब भी नाश्ता दोपहर रात खाइए तो घर में सारे बच्चों को इकट्ठा दस्तरखान पे कर लीजिए, अपनी बीवी को बिठा लीजिए, और बिठाने के बाद में जब खाना शुरू कीजिए तो खाना शुरू करने से पहले इतना कहिए, बेटे खाना शुरू करने से पहले एक बार दुरूद पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, ताकि तुम्हें इस बात का पता चले ये नेमत हमें अल्लाह ने दिया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, फकीर कहता तुम चंद महीने अपने घर के अंदर ये मामूल बना के देखो, तुम्हारा बेटा बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। वो गुनहगार तो हो सकता है लेकिन कभी बदअकीदा वहाबी राफिजी नहीं हो सकता है। वो जब भी मरेगा तो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पे मरेगा। जुमे के दिन जब खाना बनाते हो, अक्सर मुसलमानों के घरों में जुमे के दिन अच्छा खाना बनता है, फलाही बनती है, नहीं अच्छा खाना बनता है जुमे के दिन अक्सर, क्योंकि जुमा को ईद कहा जाता है। जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद जब खाना खाने आओ तो दस्तरखान पे खाना सजाकर घर के तमाम बच्चों को बिठा लो, औरतों को बिठा लो, कह दो बेटा भूख तो लगी है, खाना को खाने का दिल कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करते, छोटा सा दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 मिनट लगेगा, जरा आओ सब मिलकर इस खाने पे दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, हजरत शरफुद्दीन यहया मलेरी अपनी किताब मकतूबात सदी में इरशाद फरमाते हैं, जो लोग जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद अपने घर के खाने को खाने से पहले 100 मरतबा हुजूर पे दुरूद पढ़ करके खाना खाते हैं, अल्लाह पूरी जिंदगी के लिए उनके रिज्क से मुफलिसी को हटा देता है, बरकत को शामिल फरमा देता है। क्या कहते हैं? वाह 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 वाह। इस पे अमल नहीं होगा, ना 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 ना, इस पे अमल नहीं होगा। पता है किस पे अमल होगा? रिस्क नहीं है, कारोबार नहीं है, बेटा बेटी नालायक होगा तो खोजेगा कि बढ़िया दुआ ताबीर वाला मौलवी कौन नहीं, बाबा कौन है? जानते क्या कहेगा? एकदम घर में लफ्ज़ नहीं है कमाई, और मौलवी भी देखिए कितना खतरनाक बाबा बना, इसने जहां कहां कमाई नहीं, जानते क्या कहेगा? हाँ सही कर, हम तो देख रहे हैं आपका घर बांध दिया गया, आपका कारोबार बांध दिया गया, आप कमाते हैं लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। क्या सही, अरे बकलोल, जब पैसा कमाइबे नहीं करता है तो बरकत कहाँ से हो? हजरत बिल्कुल सही कहा। तब हजरत क्या करना होगा? कुछ नहीं, काले घोड़े का नाम लगाना पड़ेगा, उल्टा पाक का करिया मुर्गा लगाना पड़ेगा, बेटा नाम ऐसा बताएगा मर जाओगे मिलेगा ही नहीं। काला मुर्गा लाओ जिसका पाक उल्टा हो, और उसके बाद अंडा बोलो जो लाल कलर का हो, और कश्मीर के वादी में जो केसर फलता है वही चाहिए, क्योंकि उसी से जिंदा भागेगा, वो जाने रहा है किसी को मिलेगा नहीं। तो हजरत क्या करना होगा? ऐसा लखनऊ में मिलता है 11,000 का, लेकिन हमारा कॉन्टेक्ट के दुकानदार 6,000 में दे देगा, दे दो। ये बेचारा गया सूद पे, चोरी पे, डकैती पे, कर्जा पे, इनका मारा उनका मारा, लिया हजरत लीजिए 6,000। अब वो हजरत ने जब 6,000 लिया तो पहले गए फर्स्ट क्लास लखनऊ में गए, उसके बाद कहाँ साहब? लखनऊ में गए, कहाँ? लखनऊ में गए, नहीं, लखनऊ में क्या कबाब मशहूर है, सुभान अल्लाह। मुसलमान और टुंडे कबाब न जाने, मुसलमान यही तो जानता है, टुंडे कबाब जानता है, निहारी जानता है, पाया जानता है। लिया
आए तो बेचारा परेशान है, हमारा बरकत कब आएगा? सोचो अगर वाकई ताबीज ऐसा है कि लिख देने से पैसा आ जाएगा तो 5,000 में तुमको ताबीज लिख के देता कि खुद के 2-4 को लिख करके अंबानी का भतीजा बन जाए। बोलो ना गलत। अरे ताबीज ऐसा हो कि लिख देने से हर महीने तूला खाएगा, कोई सर्दी गर्मी में हम 10,000 15,000 के चक्कर में काहे मारे मारे धमौली आएंगे। गलत। अरे बोलो गलत। तकलीफ लगेगी, 2 रोटी ज्यादा खाना मेरी बला से। मुझे पता है कि तुम अगले साल नहीं बुलाओ, ना बुलाओ, लेकिन अगर बात हकीकत है तो तुम क्या, तुम्हारी नस्लें भी हमें बुलाएंगी, तुम्हारी नस्लें भी बुलाएंगी, क्योंकि मैं अपने बाप की बात नहीं कर रहा हूं, अहमद मुख्तार की बात कर रहा हूं। तुम यहां मौलवी की तकरीर से सुधरो, वरना कब्र में फरिश्तों का सोटा पड़ेगा, सोटा तोड़ेंगे फरिश्ते कायदे से। मौलवी की बात नहीं सुनी, वेलकम टू कब्र। 3rd डिग्री का ऑपरेशन नहीं है, 3rd डिग्री का मारे भेजा इधर से उधर, हड्डी इधर से उधर, पसली इधर से उधर, वहां मैं बाप रे बाप, एक बार मौका दे दिया हजरत, तब जाएंगे जमीन पे, तब फरिश्ता बन जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे बेटे जो एक बार आके वो दोबारा नहीं, सिर्फ इनकमिंग है, आउट गोइंग नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द। यार कैसे तुम्हारा जमीन गवा है? इतनी मेहनत से कमाते हो, कोई गुजरात कमा रहा है, कोई बंबई कमा रहा है, कोई हैदराबाद कमा रहा है। हमारे हाजी साहब मुल्ला हैं, बता रहे थे उधर कहीं बहुत दूर रहते, तुम अपनी कमाई का पैसा नाचने पर लगाओ। जो 2-4-5 हमारे भाई कुछ लोग होते हैं, पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मुझे किसी ने बताया नहीं है, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो खुराफाती किस्म के होते हैं, वो चाहते हैं कि तमाशा हो, तो तुम 2-4 लोगों को मनाने के चक्कर में तुम अल्लाह को नाराज करोगे, मुस्तफा को नाराज करोगे। अगर इत्तेहाद का यही पैमाना होता कि दीन का जनाजा निकलता है निकल जाए, लेकिन मोहल्ले वाले नाराज ना हो, गांव वाले नाराज ना हो, तो क्या ख्याल है? मुस्तफा के चचा थे, मुस्तफा जाने रहमत के चचा थे, लेकिन ईमान नहीं लाए तो वो चचा था, जिसे अबू जहल कहते हैं, जिसे अबू लहब कहते हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ये रिश्ते में चचा थे सब मेरे मुस्तफा के। लेकिन हुजूर ने क्या कहा? हुजूर ने कहा चचा का रिश्ता बाद में आता है, अल्लाह और रसूल का रिश्ता पहले आता है। सही वाह। मुझे बताओ कि कब्र में ये लोग जाएंगे भी जो नचाते हैं बच्चियों को, जाएंगे कब्र में? जाएंगे। लेकिन तुमने हुजूर के दीन की हिफाजत की, तो अल्लाह की कसम से मेरी कब्र में कोई जाए या न जाए, कब्र के अंदर आमिना का लाल कब्र में आमिना के लाल जाएंगे। मैं एक जुमला कह रहा हूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को सिमट रहा हूं। अगर कोई शख्स ये कहे कि औरतों की कव्वाली कराने से हजरत लाल शहीद खुश होते हैं, तो फिर मेरा एक सवाल है, चैलेंज है, और मैं ऐलान करके जा रहा हूं, किसी भी पीर को बुला लीजिए, किसी भी खानकाह के मशाइख को बुला लीजिए, मुबारक कादरी को कॉल कीजिएगा, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहूंगा, जिस दिन वो हजरत आएंगे, चाहे वो आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, पीर साहब हो, मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने से रहूंगा, अपने पैसे के खर्च से धमौली आऊंगा। और अगर वो हजरत आना चाहें तो उनके आने का जितना भी खर्चा लगेगा मैं दूंगा, और वो दोनों आके चले हजरत लाल शाह की बारगाह में और उनकी कब्र पाक पे चल करके वहां मुराकबा करें, क्योंकि शरीयत में बुजुर्गों की बारगाह में मुराकबा करके इस्तिफादा हासिल करना जायज है। सरकार की बारगाह में चल के मुराकबा करें और इस्तिफादा पेश करें, सवाल रखें कि हुजूर, एक शख्स कहता है कि आपके उर्स में औरतों को, बच्चियों को कव्वाली में नचाना ये जायज है। मैं कहूंगा कि सरकार आपके दरबार में आपके नाना की उम्मत की बेटियों को नचाना हराम है, नाजायज है। हुजूर करम फरमाइए। और अगर सरकार की बारगाह से ये इशारा मिल गया कि नहीं, जो लोग ये काम कर रहे हैं ये हराम है, हराम है, हराम है, तो क्या जवाब? और अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम एक बार नहीं 10 बार जान, तुमको पता है ये लाल शाह नहीं,
دنیا کے جتنے بھی پیر ہیں ان تمام پیروں کا پیر ہے جو بغداد میں لیٹا ہوا ہے جسے عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ عبد القادر کی ولایت کو تسلیم نہ کر لے۔ اب سنو لال بابا کے پیر کیا کہتے ہیں، وارث پاک کے پیر کیا کہتے ہیں، حضرت شیخ عبد الحق دولوی کے پیر کیا کہتے ہیں، حضرت سرکار مخدوم مینا کے پیر کیا کہتے ہیں، حضرت غریب نواز کے پیر کیا کہتے ہیں، سب پیروں کے پیر پیرانے پیر کیا کہتے ہیں۔ کتاب کا نام خلیل الطالبین، سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی عورت توجہ ہے، سرکار غوث پاک خلیل الطالبین کتاب میں فرماتے ہیں جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر جب کسی مزار کی زیارت کے لیے چلتی ہے تو صاحب مزار کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ عورت کے مزار پہ آنے سے پہلے اپنے مزار سے 40 قدم دور چلے جاتے ہیں۔ نہیں سنائی دیا؟ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی عورت بے پردہ ہو کر کسی ولی کی مزار پہ جانے کے لیے گھر سے ارادہ کرتی ہے تو وہ صاحب مزار اپنی قبر سے 40 قدم کی دور پہ چلے جاتے ہیں، اور جب وہ مزار پہ جا کر ان کی تربت پہ بے پردہ گھومتی ہے تو وہ ولی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ 40 میل کے فاصلے پر چلے جاتے ہیں۔ او سنیوں اس کرنے والوں تمہارے پیروں کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اور یہاں عبد القادر کے ماننے والے گھر سے عورت نہیں نکال رہے ہیں بلکہ لڑکی کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، کریم پاؤڈر لگواتے ہیں، اسٹیج پر لاتے ہیں، ایک طرف لڑکی بٹھالتے ایک طرف لڑکا بٹھالتے، وہ کتنا بے حیا بے شرم ہوتا ہے، وہ سب قوال جاتا کیا کیا اشارہ کر کے آئیے اب دیکھیے اس میں حسینیت کیسے جاگے گا۔ جہاں اس لڑکی نے شعر پڑھا نا بڑھوا جس کو لوٹتا نہیں ہے وہ ڈنڈا میں پیسہ لگا کے انعام دیتا ہے، ڈنڈا۔ یہاں ممتاز کانوی نعت پڑھے، حضرت حسن رضا فیضی نقابت کرے، مبارک حسین تقریر کرتے کرتے مر جائے، 100 روپیہ نہیں نکلے گا۔ یہاں تو میں بڑھوا جلسہ سننے گئے تھے، نہیں گئے تھے، کاہے نہیں گئے تھے، ہم کو لوٹتا نہیں ہے۔ تقریر سننے گئے تھے ہو، نہیں گئے تھے، کاہے دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، کہتے ٹھیک ہے ہم نہیں گئے۔ جلسے میں گئے تھے، ممتاز کانوی آئے تھے، مولانا مبارک حسین کہتے ہیں نہیں گئے، کہا بتائیں گیس کی بیماری ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، اب دوسرے دن اگر لیڈیز کو والی آ جائے بڑھوا سب سے آگے کھڑا ہے، وہ جس کو گیس کی بیماری ہوتی ہے پیٹ پھول جاتا پھٹتا نہیں، وہ سب سے آگے کھڑا اور ٹکٹکی لگا کر کے دیکھ رہا ہے، اور جہاں اس نے پڑھا اپنے کاندھے سے دوپٹہ نہ